سیالکوٹ کرین پارٹی پاکستان NA 70 کے قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر حافظ شاہد بشیر نے کہا کہ عام انتخابات میں اہل حلقہ NA 70 کی عوام نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حکومت لانے کے لیے اپنا قیمتی ووٹ دے کر اپنی محبت کا دل کھول کر اظہار کیا۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں اور کرین پارٹی کی قیادت نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ حافظ شاہد بشیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد شاہد بشیر جوچک، امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 70 تحریک لبیک پاکستان کا امیدوار تھا، اور میں اپنی عوام سے مخاطب ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر عزت سے نوازا اور اپنی تحریک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر یقین کر کے مجھے ٹکٹ دیا، اور NA 70 کی عوام کا بہت مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر عزت سے نوازا۔ سیالکوٹ کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کسی اور کا سیالکوٹ نہیں ہے۔ NA 70 انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شہر ہے یہ، اور یہ ووٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ نہ کوئی دوسری تیسری پارٹی ہے، یہ محمد کے غلاموں کا شہر ہے جس کا نام سیالکوٹ ہے۔ NA 70 ہمارا منشور وہی ہے جو ہمارے بابا جی کا منشور تھا، ہم وہی منشور لے کے آگے چلیں گے اور لے کے چل رہے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کو انشاءاللہ تخت پر لے کے آنا ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان سے وفا کریں گے۔ اور آپ سب دوستوں سے یہی اپیل ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں گزشتہ 5 سال سے سرگودا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں معروف تاجر میاں سلیم آفتاب کی جانب سے 2000 خاندانوں کے لیے مفت سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پراٹھے، روٹیاں، حلوہ، سالن، آنے والے تمام افراد کو پیکنگ پارسل دیا جاتا ہے۔ میاں سلیم آفتاب نے پیغام دیا کہ صاحب ثروت اور مخیر لوگ اللہ کی رضا کے لیے غریب اور مستحق لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلیں۔ مزید تفصیلات شاہینوں کے شہر سرگودا سے ماہر محمد اقبال کی اس رپورٹ میں۔ ہو بخشش و نجات کا سامان مبارک، بندوں پہ مولا کا یہ احسان مبارک۔ سحری وہ کھانا ہے جسے توحید کی پرستار رات کے آخری پہر یعنی فجر سے پہلے کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں سحری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے جو عموماً گھروں تک محدود ہے۔ مہنگائی کے اس مشکل دور میں ایسے کئی گھرانے شہر شہر موجود ہیں جو روکھی سوکھی کھا کر روزہ جیسی بدنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں، مگر گزشتہ چند سالوں سے سرگودا سیٹلائٹ ٹاؤن میں معروف مقامی تاجر اور سماجی شخصیت میاں سلیم آفتاب کی جانب سے ہر خاص و عام کے لیے سحری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کر کے مجھے سکون ملتا ہے۔ اس سال اب یقین کریں ایسے ایسے لوگ یہاں آتے ہیں، دیکھ کے رونا آتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان کی جتنی خدمت کی جائے کم ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہی یہی ہے اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے ہم سے کام لے رکھا ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام مخیر حضرات سے کہ وقت ہے ہمارا باہر نکلنے کا، ہم باہر نکلیں، ان لوگوں کی خدمت کریں کیونکہ یہ ان کو ہماری ضرورت ہے، تو اس کا صلہ اللہ دے گا۔ رضائے بزرگ و برتر کی خاطر محض 200 پراٹھوں سے شروع کیے جانے والے اس سحری دسترخوان سے آج سفید پوش طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سحری تناول فرماتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے، تو اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو استقامت دے اور ان کے کاروبار اس میں برکت ڈالے جو یہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جی میں بلوچستان سے ہوں، پچھلے بھی 2-3 سالوں سے ادھر ہی ہم لوگ آتے ہیں، سحری لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے پچھلے مرتبہ بھی ایسے سہولیات دیے، ابھی میرا 6 سیمسٹر چل رہا ہے ادھر ہی، ماشاءاللہ اچھا مطلب یہ
इकदाम है। सहर दस्तरखान की तैयारी का आगाज का अमल दिन 3 बजे से किया जाता है, जो वक्त सहर तक तकमील तक पहुंचता है। कारीगरों का यह कहना है कि इतनी ज्यादा मकदार में परोठे, रोटियां, सालन और हलवा तैयार करने में उन्हें काफी वक्त दरकार होता है। मियां सलीम आफ्ताब और उनकी फैमिली का कहना है कि माह सियाम में अफ्तार डिनर और अफ्तार पार्टियों में अफ्तार के दस्तरखान सजाने का रवाज तो आम है, मगर जरूरत इस अमर की है कि साहिब सरबत लोग अपने इलाकों में ऐसे सहर दस्तरखान सजाएं जहां गरीब और नदार लोग बआसानी रसाई हासिल करके माह मुकद्दस में रोजा जैसी इबादत सहूलत के साथ साथ अंजाम दे सकें। SHO ढडियाल मोहम्मद आसिफ सब इंस्पेक्टर शौकत महमूद और टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जुए की महफिल उलट दी। थाना ढडियाल पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में लेकर जुए पर लगी टोटल 4,06,000 रुपये मालियत का सामान और नकदी और आलात जुआ बरामद कर लिया। पुलिस ने एक और कार्रवाई डकैती के मुलजिम अल्लाह बचाया वल्द गुल मोहम्मद साकिन डेरा इस्माइल खान के कब्जे से माल मसरूका 12 बोर राइफल और आला डकैती 30 बोर पिस्टल बरामद कर लिया। DPO चकवार ने बेहतरीन कार्रवाई पर SHO थाना ढडियाल समेत पूरी टीम को शाबाश दी। बहावल नगर मियाँ इनाम बारी MPA PP 238 बहावल नगर के कज़न उमर जमान के घर डकैती की बड़ी वारदात। 7 मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार करते रहे। मुसल्ला डाकू उमर जमान के घर से 20 लाख रुपए नकद, 15 तोला तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार। डकैती की इतला मिलने पर मकामी पुलिस ने डकैतों का ताक़ुब किया और 7 में से 3 डकैतों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार डकैतों की निशानदही पर दीगर मुलजमान का ताक़ुब जारी है। बाग़ाज़ात कश्मीर और गिरदुनवा में बारिश, पहाड़ों पे बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार। कंट्रोल लाइन पे वाक़या यूनियन कौंसिल बेड़ी के मोतद धात का बर्फबारी के बायस बाग़ लस्टना हाजी पीर फारूक का हुटा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। रोड बंद होने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मअतल। बेड़ी की बड़ी आबादी इलाज मुआलजे की सहूलियात से महरूम। बर्फबारी और रोड्स की बंदिश की वजह से मरीजों को बेड़ी से कई मील पैदल की मुसाफत तय करके बर्फ़ को चीर कर बाग या फ्रूट का होटा अस्पताल में लाना पड़ता है। रमज़ान अल मुबारक में बेड़ी में ग़ज़ाई बहरान ने भी सर उठा लिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बेड़ी रोड से बर्फ़ हटाने और रोड बहाल करने के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं उठाया जा सका। अवाम इलाका का बागता लस्टना हाजी पीर फारूक का होटा बेड़ी रोड की फौरी बहाली और इलाका मकीनों को इलाज मुआलजे और खुराक की फराहमी का मुतालिबा। बाकी मौजूद इलाकों का गुज़िश्ता रोज़ की बारिश और बर्फबारी से बंद रास्ते खोलने के लिए भी काम जारी है। की तहसील जुंड जहां पर 9 माह कबल घर से लापता होने वाली 13 साल नाबालिग लड़की का गैर कानूनी जाली निकाहनामा सामने आ गया। मुतासरा खानदान ने कहा कि पुलिस की जानिब से थाना जुंड में FIR दर्ज हुई, लेकिन अमली तौर पर कोई कार्रवाई न हो सकी। मुतासरा खानदान का दादरसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब और RPO रावलपिंडी से नोटिस लेकर इंसाफ देने का मुतालबा। मुतासरा खानदान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम है नजमा बीबी, असी दोपहर गिराए रहने वाले हैं जिला अटक तहसील जंडे। मेरी बच्ची है 13 साल में, उस 8-9 महीने थी गए अगवा की थी गई है। असा जंड थाने दरखास्त दी थी तशीशी राशि साहब, उसने लाख रुपए रिश्वत चाके भाई असी थोड़ी बच्ची बरामद कर गया। उन्हें अड्डी बच्ची बरामद नहीं की थी, वह असी अटक गया रीपू साहब को उन्हें दरखास्त दी थी। उन्हें भी अभी कोई फरियाद नहीं छुड़ी। जिन्हें अगवा की थी उन्हें जेली ने का नामा बना के गैर कानूनी 13 साल में बच्ची छोटी उम्र गैर कानूनी निकाह बना के थे आपने कॉल रखी हुई। मैं वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब गुजारिश करेनी है, दरखास्त देनी है भाई अड़ी मदद की थी मुझे असा इंसाफ मिले मुझे असी इंसाफ मांगना। मेरी भतीजी तरन्नुम नाथ जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है 23/5/2023 को घर से अगवा हुई, जिसकी हमने पुलिस स्टेशन जंड में कंप्लेन दर्ज कराई, FIR हुई और इसके तफ्तीशी अफसर थे SI राशिद साहब। SI राशिद साहब ने हमसे लाख रुपए भी लिया कि मैं बंदे पकड़ूंगा और उसके बाद बच्ची भी बरामद करूंगा, लेकिन उन्होंने ना बंदे पकड़े और ना ही बच्ची बरामद की है। जबकि उन दूसरी पार्टी ने बच्ची का जेली निकाहनामा भी जमा करा दिया है कि हमारी शादी होगी, जबकि 13 साल की सिर्फ 13 साल उम्र है उसकी, तो कैसे शादी हो सकती है उसकी। दूसरा, इस पर हमने DSP साहब के पास भी हम 2 दफ़ा गए और DPO साहब के पास भी हम 2 दफ़ा गए एप्लीकेशन लेके, लेकिन ताहाल उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा हमने चाइल्ड ब्यूरो प्योर प्रोटेक्शन में भी एप्लीकेशन दी है। उसके बाद ज़ारा सेल में भी हम गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दी है, जबकि ज़ारा सेल ने लेटर भी लिखा है DPO साहब को कि
कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ताहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा हम अपील करते हैं वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG साहब और RPO साहब से कि प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे साथ रहम किया जाए, हमारी इजाज़त रसी की जाए और हमारी बच्ची को बरामद कराया जाए। मैं मरीज आई हूँ, मैं सामत वास्ते के नाम गया वो मारे मेरे को रात के गाख कर खड़ी माँ कोई समझ नहीं लगी, पता नहीं मैं ना ये ज्यादती की गई, मेरी ज्यादती ने कोई इंसाफ की तरह। हारूनाबाद रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म, फलों की कीमतों में 4 गुना तक इजाफा, इंतज़ामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम, अवाम महंगाई के हाथों परेशान। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहां मुसलमान नेकियां कमाने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, वहीं चंद बदबख्त इस महीने का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया कमाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। गैर मुस्लिम मुआशरों में रमज़ानुल मुबारक में फलों की कीमतें मामूल से कम कर दी जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ इस बाबरकत महीने में कीमतें 4 गुना तक बढ़ा दी जाती हैं। हारूनाबाद में भी रमज़ानुल मुबारक में महंगे फल आवाम की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। जो केले रमज़ान से पहले 100-120 रुपये दर्जन थे, अब 250 रुपये दर्जन हैं। जो सेब 250 रुपये थे, अब 400 रुपये, और जो माल्टे 100 रुपये किलो थे, अब वही 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। जो फल रमज़ान शरीफ से पहले 100 रुपये किलो था, वो 400 किलो बिक रहा है। जो चीज़ केला वगैरह जो 100 रुपये दर्जन था, वो 300 रुपये दर्जन बिक रहा है। इस बार रमज़ान शरीफ में फल जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, वो ख़रीद नहीं सकता। रमज़ान से पहले जो फल फ्रूट 100 रुपये दर्जन या किलो था, अब वही 250 रुपये से लेकर 400 रुपये तक बिक रहा है। लिहाजा इस दफ़ा हम इफ्तारी के लिए फल फ्रूट खरीदने का सोच भी नहीं सकते। जी, महंगाई कम करने के दावे फ़िलहाल सिर्फ ऐलाना तक ही महदूद हैं। अमली तौर पर फल सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि इस दफ़ा इफ्तारी में कोई अजाफी डिश नहीं बना पाते, बस रूटीन में जो पकता है इसी से इफ्तारी कर रहे हैं। अफ्तारी में फ्रूट चाट जैसी रवायती डिश इस दफ़ा दस्तरखान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि फल इस दफ़ा बहुत महंगे कर दिए गए हैं और आम आदमी और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। अवाम को महंगाई से निजात के जितने भी मंसूबे हुकूमत बनाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ और नजायज़ मुनाफाखोर इसे नाकाम बनाकर दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं, जबकि मुकामी इंतज़ामिया की नाअहली से नजायज़ मुनाफाखोर माफिया खुलेआम अवाम की खाल उतार रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम में गैर मियारी बेसन, चावल, घी और दीगर सामान की नाकिस फराहमी, तहसील के काम में बदनज़मी और मुस्तहिक़ीन तक ना पहुँचने की संगीन शिकायत पर ज़िली इंतज़ामिया और निगरान कमेटी का पुरअसरार खामोशी सवालिया निशान बन गई। सरगोदा में 1.5 अरब रुपए से ज़ायद इस पैकेज में गैर मियारी सामान की फराहमी, करप्शन की निशानदही या कोई बयान देने से नून लीग के अरकान असम्बली और कैदीन को सख्ती से रोक दिया गया, जबकि अफसरान ठेकेदारों के साथ मिलकर एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं और ट्रकों के हिसाब से मुबैना कमीशन वसूल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरगोदा में निगहबान रमजान प्रोग्राम में गैर मियारी बेसन, चावल, घी और दीगर सामान की नाकस फराहमी, तरसील के काम में बदनज़मी और मुस्तकीन तक ना पहुँचने की संगीन शिकायत पर ज़िले इंतजामिया और निगहबान कमेटी की पुरअसरार खामोशी सवालिया निशान बन गई है, जबकि सरगोदा में 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की पैकेज में गैर मियारी सामान की फराहमी, करप्शन की निशानदही या कोई बयान देने से नून लीग के अरकान असम्बली और कायदीन को सख्ती से रोक दिया गया है। रमजान निगहबान प्रोग्राम के लिए मियारी सामान की फराहमी नहीं हो रही और पूरी इंतजामिया और अफसरान टारगेट पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। अफसरान ठेकेदारों के साथ मिलकर एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं और ट्रकों के हिसाब से मुबीना कमीशन वसूल कर रहे हैं। रमजान पैकेज में आटा, बेसन, चीनी और दीगर सामान की फराहमी करने वाले कई ताजर भाग गए हैं और ठेकेदार ने काम में तेजी लाने के लिए ठेका कई दूसरे ठेकेदारों को मिलाकर किया है, मगर और कई एलानिया और खुफिया मकामात पर वेयर हाउस बनाकर रमजान निगहबान प्रोग्राम के सामान की पैकिंग की जा रही है। 2 रोज पहले चंद ठेकेदारों ने काम से माजरत कर ली, जिसके बाद नई टीमें लाई जा रही हैं। एक बड़े अफसर ने अपना हिस्सा रखने की शर्त पर एक नई पार्टी को काम दिलवाया है। खुफिया एजेंसियां कमीशन माफिया के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं और चंद रोज में 3 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है कि वो गैर मियारी बेसन और दीगर नाकस सामान की फराहमी में मुलव्वस है। साबका दौर में मुफ्त आटा स्कीम आटा फराहम करने वाली मिलों को ताहाल करोड़ों रुपए की अदायगी नहीं हो सकी और इस मुल्क गिर स्कैंडल
में 4 अरब रुपए का आटा खुर्द बुर्द करने का इल्जाम सामने आया था। बड़े ताजरों ने सामान की फराहमी से माजरत कर ली है और उन्हें ठेकेदार की अदायगी नहीं कर रहा। ये भी मालूम हुआ है कि वेयर हाउसेज पर दौरान पैकिंग सामान की कोई चेकिंग नहीं है। ठेकेदार गट्टू में किस क्वालिटी का सामान पैक कर रहा है और ना ही रास्ते में सामान की चेकिंग के लिए सरप्राइजिंग छापे मारे जा रहे हैं। फूड अथॉरिटी की कोई टीम मौका पर मौजूद नहीं है। ठेकेदार को मन मर्जी पूरी इजाजत है। फूड अथॉरिटी ने अवामी शिकायत पर 50 करोड़ से जायद सामान की फराहमी के बाद खानापुरी के लिए एक बेसन का सैंपल नाकस करार दिया है और अदनान नामी ताजर पर FIR काट कर करप्शन और नाकस सामान की फराहमी में मुलव्वस ठेकेदार और अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। फूड अथॉरिटी के इंचार्ज से राब्ता करने पर मीडिया को बताया गया कि मेरे पास कोई मालूमात नहीं, सब कुछ DC ऑफिस में है, वहाँ राब्ता करें। याद रहे सरगोदा में 3 अरकान असम्बली राना मुनव्वर गौस, आसम शेर मेकन और सफदर हुसैन साई पर मुश्तमिल निगहबान कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी अब तक कहीं नजर नहीं आई, जबकि 1.5 अरब रुपए के प्रोग्राम में खुलेआम लूट मार और मुबीना करप्शन हो रही है।